Okay, good morning my dear student. Today day 11 part 1 and our chapter is coordinate geometry. Here then in this chapter we discuss some question asked in your examination or in your book related to coordinate geometry. Now in our previous classes we already know the coordinate geometry is a combination of, in the coordinate geometry we can draw two number line x and x dash. They are intersect at the origin. It is called O and their coordinate is 0, 0. Here and on this axis there is before x axis before the origin all value are negative, -2, -3, -4, -5 with equidistance, and on y axis in downside all value are negative, -1, -2, -3, -4, -5 and so on. On x axis right side or after the origin all value are positive, +1, +2, +3, +4, +5 and so on. On y axis all value are positive of upper side of the origin. It is +1, +2, +3, +4, +5. What you can take care about this? The distance are equal. Each point have the equal distance. Clear? And it is started from the origin. It means we not write -1, -2, -3. We start from here, -1, -2, -3 and so on. Okay? Then after you know that it is called the quadrant. First quadrant all value are plus and plus. Second quadrant minus and plus. Third quadrant all are the negative. And fourth quadrant it is plus and minus. You know that the first point refer to the x axis and second point refer to the y axis. This point is called the abscissa. In this order pair it is called the abscissa. Abscissa and second point is the ordinate. Ordinate refer to the y axis and abscissa refer to the x axis according to their sign. Then after in book it is asked a question, what is the coordinate of this point? What is the location in coordinate of this point? Suppose you have some point like 0, 2, 3, 5, 4, 0, 3, 2, 4, 5, both are negative, 5, 1, 1, 3. All are the points. And we want to locate in the xy plane or Cartesian plane. Clear? Then what you can do? You can represent it on graph. It is better you use the graph because on the graph all the lines are equal distance. Clear? We can take according to our convenience. If you have no graph paper, then you can make with
equal distance with the x axis and y axis. Clear? Then after, here you know that abscissa means the value of x is 0 on y axis and value of y is 0 on x axis. Then the first point 0 and 2. Where is the 0, 2? First point is 0. It means this point is on y axis because here abscissa are 0. And the second point is plus 2. It means this point is positive direction on y axis. Now it is plus 2 and here is abscissa 0. Now this point is the 0 comma plus 2. If you are not written the sign, this point, okay, in the circular point. In the same way, minus 3 and 5. Clear? Minus 3 means the first point is abscissa and it is the negative. Clear? And second point is 5. Then from here we can draw a perpendicular line like this. Okay? And then after, second point is plus 5 and the point 5 we can draw a perpendicular line at point 5 or draw a line parallel to x axis. देखिए पहले आप जो है पहले पॉइंट को मतलब एबिसिसा से आप जो लाइन ड्रा करोगे y एक्सिस के पैरेलल होगा और ऑर्डिनेट से जो लाइन ड्रा करोगे वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। अब आप जानते हो कि एबिसिसा और ऑर्डिनेट दोनों परपेंडिकुलर पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों लाइन के जो पैरेलल जो भी लाइन होगी वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर ही इंटरसेक्ट करेगी। इस टाइप का क्वेश्चन आप पहले पढ़ चुके हो। तो ये जो पॉइंट होगा जहां ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -3, 5। ठीक है। अब इसके बाद से 4, 0, तो 4 पॉजिटिव है और सेकेंड वैल्यू 0 है, मतलब y की वैल्यू 0 है। तो आप जानते हो कि ऑर्डिनेट इज 0 ऑन x एक्सिस, तो इसका मतलब यह हो गया कि यह जो पॉइंट है वो x एक्सिस पर होगा और किस डायरेक्शन में होगा, तो 4 के पहले कौन सा साइन है, प्लस साइन है, तो यह +4 मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो यह जो पॉइंट है यह 4, 0 वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद से 3 और 2, तो पहला पॉइंट क्या है 3, 2। अब देखिए यह हो गया आपका 3 और दूसरा हो गया 2, तो यह जो पॉइंट हो गया यह 3, 2 वाला पॉइंट हो गया। अब मान लीजिए 2 और 3 आपको दिखाना हो, 2 और 3 दिखाना हो, जैसे आपको बताया गया था कि ऑर्डर पेयर आर नॉट रेसिप्रोकल, देन इफ यू रिप्रेजेंट 2 and 3, then first point is 2 and second point is 3, then this point is 2, 3, then you see the location of 3, 2 is here and location of 2, 3 is here. Clear? It means ordered pair are not reciprocal. Then after -4 and -5, here the first point is -4 and -5. The lines are intersect is the point. It is the -4, -5. In the same way, -5 and 1. So -5 is this is the -5 and it is the 1. Now this point is -5, 1. 1 -3. Then you know that it is the 1. First point is on x-axis. It is the positive, and it is this point is 1, -3. Here, then this type of question also आपको पॉइंट दिया गया रहेगा और कहेगा कि आप उसको कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करिए, तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, आ रहा समझ में? अब इसके बाद से एक क्वेश्चन आएगा आपका। इसके पहले आपको बताया गया था एक क्वेश्चन आएगा कि ऐसा पॉइंट दिया रहेगा कि पूछा जाएगा ये किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, फिर दोबारा आपको पॉइंट देके कहा जाएगा कि इसको आप एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करिए। अब आपको
दिया गया रहेगा पॉइंट। कैसे दिया गया देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि आपके एक्सरसाइज में और इस चैप्टर से रिलेटेड किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए क्या दिया रहेगा, यहाँ एक्स वाई प्लेन बना के क्वेश्चन पेपर पे दिया रहेगा, और आप जानते हो एक्स वाई प्लेन, तो ये एक्स डैश वाई डैश एक्स और यह वाई, यह ओरिजिन। अब इस पे पॉइंट दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए इस पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 and so on, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8। क्लियर? देन आफ्टर द क्वेश्चन इज, आपको इस एक्स वाई प्लेन में कहीं कहीं पॉइंट दे देगा। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट यहां दे देगा ए, फिर एक पॉइंट यहां दे देगा बी, फिर सी डी ई एफ जी, और आपसे क्वेश्चन रहेगा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। इस पॉइंट्स के जो ए बी सी डी ई एफ जी लिखा गया है, इसका कोऑर्डिनेट बताइए। तो कोऑर्डिनेट कैसे बताओगे आप, इस पॉइंट ए से पहले आप एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करोगे। तो एक्स एक्सिस पे जब आप ड्रा करोगे स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तो वह 4 पे, तो इसका पहला कोऑर्डिनेट -4 हो गया। ठीक, फिर दूसरा ऐसे आप लाइन ड्रा करोगे, तो अप्रोक्सीमेटली है 8 से ऊपर, इसको हम +9 मान लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, +9। तो इस तरीके से आपको कोऑर्डिनेट मिलेगा। फिर देखिए बी के लिए क्या है, यह एक्स एक्सिस पे है, तो ये कहां पे है, -5 पर, तो यह हो गया -5। और आप जानते हो कि एक्स एक्सिस पे ऑर्डिनेट 0 होता है, तो यह 0 हो गया। इस तरीके से आप लगा लोगे। तो अभी इस पार्ट में हम यह सीखे हैं कि किस किस टाइप से क्वेश्चन आता है। अब इसके बाद से इसको थोड़ा और टफ करते हैं, तो क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा देखिए। अब इसमें मान लीजिए ये इसका टफेस्ट क्वेश्चन है, इसका टफ क्वेश्चन आपके 9th क्लास में नहीं पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए यह क्वेश्चन दिया है ए और यह दिया है बी और यह दिया है सी। अब आपको क्या क्वेश्चन रहेगा कि आप इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए। ठीक है, आप इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए। तो आप कोऑर्डिनेट बता लेंगे, इसका कोऑर्डिनेट कुछ आएगा ये सब पॉइंट का, और आप इसको जब ज्वाइन करेंगे तो आप इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे। मान लीजिए आपका सी यहां पे है, ठीक, और ये सब ज्वाइन जो हो जाएगा, तो जो भी फिगर बनेगा उस फिगर का नाम बताइए और उसका एरिया बताइए। इससे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह एक टफेस्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, और ये पूछा जाएगा तो 4 नंबर में। क्या पूछा जाएगा कि आपको पॉइंट एक्स वाई प्लेन में पॉइंट दिया गया रहेगा और कहेगा कि आप जो है इसका कोऑर्डिनेट, पहला क्वेश्चन क्या होगा, कोऑर्डिनेट बताइए क्या होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, इस सभी पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाएगा तो कौन सा फिगर बनेगा उसका नाम बताइए। उसके बाद से वो जो फिगर बनेगा उसका एरिया कितना होगा। अब इसमें एक तो मान लीजिए कि आप जब इसको ज्वाइन करें तो ट्रायंगल बन गया। कभी कभी जो है ऐसे मान लीजिए कि यहाँ और भी पॉइंट हो सकता है, तो आप इसको ज्वाइन करके इधर से ज्वाइन कर लेंगे, तो जो भी फिगर बनेगा उसका नाम और एरिया बताना होगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे देता है केवल 2 ही पॉइंट देगा,
जो भी, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल बन गया तो आप ट्रायंगल का एरिया निकालना जानते हो। इसमें 90 डिग्री होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। तो बेस और परपेंडिकुलर से अब मान लीजिए कि एक पॉइंट यहाँ है और दूसरा पॉइंट एकदम सीध में है, और कह दे कि इसको आप ओरिजिन से ज्वाइन करिए। तो ओरिजिन से ज्वाइन करने का मतलब कि यह हो गया, ज्वाइन हो गया ओरिजिन से, और फिर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करिए, और जो भी आपको फिगर बनेगा उसका नाम और एरिया। तो यह आप ट्रायंगल बन गया और इसका एरिया। तो अब आपके पास एक यह है कि इसका डिस्टेंस कैसे निकालोगे। तो यहां से इधर जो भी डिस्टेंस होगा नेगेटिव में, तो आप जानते हो कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, तो आप इस ए बी का लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है, और यह इसका हाइट हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है। अब इसके बाद से हम नेक्स्ट क्लास में हम रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।